एवरीबॉडी वेलकम बैक टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर्स की फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। इसमें टोटल 7 क्वेश्चंस हैं नो पैटर्न के अकॉर्डिंग। फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के अकॉर्डिंगली हम किसी भी कंपोजिट नंबर जो नेचुरल नंबर हो उसको हम उसके प्राइम फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल लिख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है सॉल्व करना। 140 के हम फैक्टर्स निकालेंगे। 140 को सबसे पहले सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 से डिवाइड किया 70, फिर 2 से डिवाइड किया 35 लास्ट डिजिट इज 5। 3 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है क्योंकि 3 1 3, 3 1 3, 2 रिमाइंडर आ रहा है इसलिए 3 से डिवाइड नहीं होगा। लास्ट डिजिट इज 5। देन नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 5। 5 7 35, 7 1 7। सो 140 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 156। 156 के सिमिलर फैक्टर्स बनाने हैं हमने। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 2 7 का 14, 2 8 का 16, फिर 2 से डिवाइड किया 3 2 का 6, 3 9 का 18 और 2 9 का 18। नाउ 39 is divided by 3 because last digit is 9 and it's not divided by 2. 3 1s are 3, 3 3 the 9. Now 13 is a prime number so it divides itself. 13 1s are 13. Now 156 is equal to 2 into 2 into 3 into 13. Now next number is 3825. Last digit is divide 5. It's divided by, firstly check it will be divided by 3 or not. ये 3 पर तभी डिवाइड होगा अगर इसके डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड होता है। लेट इट बी चेक्ड। 3 plus 8 11, 11 plus 2 13, 13 plus 5 18. So it will be divided by 3 because 18 is divided by 3. 3 1s are 3, 3 2 the 6, 2 रिमाइंडर आ गया, 3 7 the 21, 1 रिमाइंडर आ गया, 3 5 का 15. नाउ अगेन चेक इट्स डिविजिबल बाय 3 और नॉट। 1 और 2 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15. 15 is divisible by 3 so it's divisible by 3. 3 4 the 12, 3 2 the 6, रिमाइंडर 1 आ गया और देन 3 5 the 15. Again check it is divisible by 3 or not. 4 और 2 6, 6 और 5 11. 11 is not divisible by 3 so next prime number is 5. 5 8 का 40, 5 5 the 25. Now again divided by 5. 5 1s are 5, 5 7 the 35. Now it divisible by 17 because 17 is a prime number. 3825 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 into 3 into 5 into 5 into 70. Now next number is 5005. Firstly divided, check it will be divisible by 3 or not. 5 plus 0 5 plus 0 5 plus 5 10. 10 is not divisible by 3 so it is not divisible by 3. Now it's divisible by 5 because the last digit is 5. 5 1s are 5, 0 as it is, 0 as it is, 5 1s are 5. Now last digit is 1 so it's not divisible by 5. Now check the next prime number 7. Is it divisible by 7? You can divide it by 7. 7 1s are 7, 3 0, 7 4 the 28, 2 1, 7 3 का 21. It's divisible by 7. We get 143. Now again check it is divisible by 7. No, because 7 to the 14, 3 is the remainder so it will be not divisible by
7. Now check with the next prime number. Next prime number is 11. 143 is divided by 11 or not? 11 ones are 11, 3 remainder, 3, 11 3 the 33. So it will be divisible by 11. We get 13. 13 is prime number, so it is divisible by itself. Get 1. So 5005 can be written it as 5 into 7 into 11 into 13. Now next number is 7429. Now सबसे पहले हम 3 से चेक करेंगे क्या ये 3 से डिविजिबल है और नॉट। 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम डिजिट्स का सम करते हैं। 7 + 4 11 + 2 13 + 9 22. 22 is not divisible by 3, so this number is not divisible by 3. Now next prime number is 5. It's not divisible by 5 because last digit is not 0 or 5. Now check the divisibility by 7. We will divide 7429 with 7. 7 ones are 7, 4, 0, 2, 7 5 का 35, 7 6 का 42, 9, 7 ones are 7. 2 रिमाइंडर आ गया इसके, इसलिए it's not divisible by 7. Now check the divisibility by 11. Next prime number is 11. For check the divisibility by 11, we will add odd digit numbers and even digit numbers, then subtract. If 7 plus 2 9, 4 plus 9 13. Now subtract both of these. 13 minus 9 is equal to 4. 4 is not divisible by 11, so it's not divisible by 11. Now check the divisibility by 13. Next prime number is 13. When we divide it by 13, 7429 divided by 13. 13 6 का 78, 13 5 का 65. Now check, डिवाइड किया 9 आ गया, 7 पर गया 91, 1 9, 13 ones are 13, 6 remainder आ गया, so it will not divisible by 13. Now next prime number is 17, so it will be divided by 17. We check the divisibility by 17. 7 ones are 7, 7 2 the 34, 51, 68, 7 4 का 68, remainder 6. Now take 2, 7 3 the 51, 1 1 19, 7 7 का 119. So it will be divisible by 17. First prime number is 17. When we divide it by 17, we get 437. Now check 437 is divisible by 17 or not. 437 divided by 17. 17 to the 34, 9 7, 85. Now remainder is 12, so it will be not divisible by 17. Now next prime number is 19, so it will be check the divisibility by 19. 19 to the 38, 5 7, 19 3 the 57, so it will be divided by 19. We get 23. 23 is a prime number, so it will be divisible by itself. So we can write 7429 is equal to 17 into 19 into 23. This one is our first question. Next is find the LCM and HCF of the following integers and verify LCM into HCF is equal to product of two numbers. सबसे पहले हमने दोनों नंबर्स का क्या निकालना है, LCM और HCF. देन हमने वेरीफाई करना है भी इनकी जो प्रोडक्ट है वो इनके LCM और HCF की मल्टीप्लीकेशन के इक्वल है. सबसे पहले हम 26 के सेम फैक्टर्स निकालते हैं, प्राइम फैक्टर्स.
2 13 13 13 1 सा 13. सिमिलरली 91 के क्या हो गए? 91 इज डिविजिबल बाय 2? नो. 3 is it divisible by 3? Check. 9 plus 1 10. 10 is not divisible by 3, so it's not divisible by 3. Last digit is 0 or 5, so it's is not 0 or 5, so it's not divisible by 5. Now check the divisibility by 7. 7 1s are 7, 3 7 का 21. Now 13 is prime number. 13 1s are 13. Now 26, 2 into 13 into 1. 91 को हम कैसे लिख सकते हैं? 7 into 13 into 1. What is HCF? HCF is equal to smallest power common factor, common prime factor. हमने कल किया था, HCF किया है नंबर्स का स्मॉलेस्ट पावर वाला कॉमन प्राइम फैक्टर निकालना है. देखिए दोनों नंबर में से कॉमन प्राइम फैक्टर कौन सा है? जो स्मॉलेस्ट पावर वाला हो. 2 दोनों में नहीं है, सो नहीं है. नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 7, 7 दोनों में नहीं है. नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 13, 13 और नेक्स्ट वन इज 1. सो HCF इज इक्वल टू 13. नाउ वी विल फाइंड LCM. LCM क्या है? LCM है ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर. हर एक प्राइम फैक्टर की ग्रेटेस्ट पावर. देखिए 2 की ग्रेटेस्ट पावर यहाँ पर कितनी है? 1. सो we will write it to it as it is. Next prime number is 7. 7 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1. 13 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 13 इंटू 1. अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 13 को 7 से मल्टीप्लाई किया 91, 91 को 2 से मल्टीप्लाई किया 182. Now check, verify that LCM into HCF should be equal to product of two numbers. LCM is 13, HCF is 13, LCM is 182. Now multiplied both of these. 13 into 182. 13 को 182 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई करते हैं हम. 13 2 का 26, 2 104 into 2 106, 10 23, यानी 2 3 6. LCM into HCF. Write product of numbers. Product of numbers. What are numbers? 26 into 91. 26 को 96. This one is also 2 3 6. Both are equal. Hence LCM into HCF is equal to product of two numbers. Part is 110 and 92. 510 और 92 का हमने क्या निकालना है? LCM and HCF. So उससे पहले हम क्या निकालेंगे? इनके प्राइम फैक्टर्स. सबसे पहले 2 से डिवाइड हुआ 25, 5, फिर 5 से डिवाइड किया. 3 से चेक कीजिए, 3 से डिवाइड होता है 5 plus 2 7 plus 5 12. So it will be divisible by 3. 8 और 5. Now it's divided by 3 or not? Check कर. 8 plus 5 13. 13 is not divisible by 3, so it will be divisible by next number, prime number 5. 17. 17 is a prime number, so it will be divisible by itself. 510 को हम कैसे लिख सकते हैं? 510 is equal to 2 into 3 into 5 into 17 into 1. Now next number is 92. 92 2 से डिवाइड किया 46, then 2 से डिवाइड किया 23. 23 is a prime number. इसको 23 से डिवाइड किया 1 आ गए. 92 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 into 2 into 23 into 1. Now LCM. LCM क्या होता है? ग्रेटेस्ट पावर
ऑफ प्राइम फैक्टर्स। सबसे छोटा प्राइम फैक्टर कौन सा है? 2। 2 में से ग्रेटेस्ट पावर किसकी है? 2 रेज टू पावर 2 की। देन 3। 3 की ग्रेटेस्ट पावर क्या है? 3। 5 की ग्रेटेस्ट पावर क्या है? 5। 17 की ग्रेटेस्ट पावर क्या है? 17। 23 की ग्रेटेस्ट पावर क्या है? 23। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 12, 12 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 60, 60 को 17 से मल्टीप्लाई किया, 16 को 17 से मल्टीप्लाई किया, 1020, 1020 को 23 से मल्टीप्लाई किया, 0603, 0402, 0643, क्या आ गया? 2346। नाउ HCF। HCF क्या है हमारे पास? स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर्स। स्मॉलेस्ट पावर क्या है इनमें से? 2। कॉमन फैक्टर 2 के अलावा और कौन सा है? ओनली 1। दैट मीन्स HCF क्या आ गया? 2। नाउ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू 510 इंटू 92। 92 को हम 551 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 46 क्या आ गया? 46920। नाउ LCM इंटू HCF। LCM इंटू HCF is equal to 23462 46920. Product of LCM and HCF and product of numbers are same, hence verified. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 336 एंड 54। सबसे पहले हम 336 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 2 से डिवाइड किया 168, 2 से डिवाइड किया 84 आ गया, 84 को 2 से डिवाइड किया 42, 42 को 2 से डिवाइड किया 21, 21 को 3 से डिवाइड किया 7, 7 को 7 से डिवाइड किया 1। सिमिलर 54 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। 54 को 2 से डिवाइड किया 27, 27 को 3 से डिवाइड किया 9, 9 को 3 से डिवाइड किया 3, 3 को 3 से डिवाइड किया 1। 336 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 4 टाइम्स आया है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं? 2 रेज टू पावर 4। 3 1 टाइम्स है, 3 रेज टू पावर 1, 7 1 टाइम, 7 रेज टू पावर 1। सिमिलरली 54 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 रेज टू पावर 1 इंटू 3 रेज टू पावर 3 इंटू 1। नाउ एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। सबसे पहले प्राइम फैक्टर सबसे छोटा कौन सा है? 2। 2 में से ग्रेटेस्ट पावर वाला कौन सा है? 2 रेज टू पावर 4। 3 रेज टू पावर 1 और 3 रेज टू पावर 3 में से ग्रेटेस्ट पावर वाला कौन सा है? 3 रेज टू पावर 3। नाउ 7 में से हाईएस्ट पावर वाला 7 रेज टू पावर 1 वाला है, तो इस 7 ले लिया। इन सभी को मल्टीप्लाई करने हैं। 2 रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 16। 3 रेज टू पावर 3 को सॉल्व किया तो 27 आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास कितना आ जाएगा? 3024। नाउ HCF। HCF क्या होता है? स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर। स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर्स। 336 के फैक्टर्स ये हैं, 54 के ये हैं। इनमें से स्मॉलेस्ट पावर वाला कौन सा हो गया? 2 रेज टू पावर 1। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, बट स्मॉलेस्ट पावर वाला कौन सा है? 3 रेज टू पावर 1 वाला। 1 कॉमन आ गया। इनको मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? 6। नाउ एलसीएम मल्टीप्लाई HCF। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास कितना आ जाएगा? 8144। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स फाइंड करना है। नंबर्स कौन कौन सी हैं? 336 एंड 54। दोनों को मल्टीप्लाई करके भी कितना आ जाएगा? 8144। सो बोथ आर सेम, हैंस वेरीफाइड। Next question is find the LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method। मतलब हमारे पास नंबर्स दिए हुए हैं, उनका LCM और HCF फाइंड करना है। किस मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। सबसे पहले 12 के प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं। 12 को 2 से डिवाइड किया 6,
6 को 2 से डिवाइड किया 3, 3 को 3 से डिवाइड किया 1। 15 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 15 को 3 से डिवाइड किया 5, 5 को 5 से किया 1। सिमिलरली 21 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? 3 को 21 को 3 से डिवाइड किया 7, 7 को 7 से डिवाइड करने के बाद क्या आता है? 1। 12 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स, सो 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3 रेज टू पावर 1 इंटू 1। 15 को कैसे लिख सकते हैं? 3 इंटू 5 इंटू 1। सिमिलरली 21 को कैसे लिखेंगे? 3 इंटू 7 इंटू 1। नाउ एलसीएम, एलसीएम सेम ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। इनमें से सबसे छोटा प्राइम फैक्टर कौन सा है? 2। 2 में से 2 की सबसे ग्रेटेस्ट पावर क्या है? 2 रेज टू पावर 2। उसके बाद आता है 3। 3 की ग्रेटेस्ट पावर तीनों में से कौन सी है? 3 रेज टू पावर 1। उसके बाद प्राइम फैक्टर कौन सा आता है? 5। 5 में तीनों में से प्राइम फैक्टर 5 की ग्रेटेस्ट पावर क्या है? 5 रेज टू पावर 1। सिमिलरली 7 की ग्रेटेस्ट पावर क्या है? 7 रेज टू पावर 1। इन सभी को मल्टीप्लाई करके हमारे पास कितना आ जाएगा? 420। नाउ HCF, HCF क्या है? स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर्स। अब तीनों में से देखिए कौन सा कॉमन फैक्टर है? ओनली 3 इज कॉमन इन ऑल, सो नाउ चेक द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ दीज। तीनों में स्मॉलेस्ट पावर क्या आ रही है? 3 रेज टू पावर 1, सो 1, 3 आ गया। सिमिलरली 1 इज कॉमन, 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट पार्ट इज 17, 23 एंड 29। 17 is a prime number, so it divides itself. 23 is also prime number, 23 is divided by 23. 29 is prime number, so it also divisible by itself. 17 को कैसे लिख सकते हैं? 17 इंटू 1, 23 इंटू 1, 29 इंटू 1। HCF क्या होगा? कॉमन फैक्टर, स्मॉलेस्ट पावर वाला। कॉमन फैक्टर कौन सा है? ओनली 1, सो HCF इज इक्वल टू 1। LCM क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर कौन सा है? 17। 70 की हाईएस्ट पावर क्या है? 17 रेज टू पावर 1। सो सिमिलरली 23 की हाईएस्ट पावर 23 रेज टू पावर 1 है। 29 की हाईएस्ट पावर क्या है? 29 रेज टू पावर 1 है। इन सभी को मल्टीप्लाई करके हमारे पास कितना आ जाएगा? 8993। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज 8, 9 एंड 25। 8 के प्राइम फैक्टर्स क्या आएंगे? 2 से डिवाइड किया 4, 4 को 2 से डिवाइड किया 2, 2 को 2 से डिवाइड किया 1। 9 के प्राइम फैक्टर 3, 9 को 3 से डिवाइड किया 3, 3 को 3 से डिवाइड किया 1। 25 के 5 से डिवाइड किया 5, 5 को 5 से डिवाइड किया 1। 8 इज इक्वल टू 2 कितने टाइम्स आया है? 3 टाइम्स, सो 2 रेज टू पावर 3 इंटू 1। 9 को कैसे लिख सकते हैं? 3 रेज टू पावर 2 इंटू 1, क्योंकि 3 कितने टाइम्स आया है? 2 टाइम्स। सिमिलरली 25 को हम कैसे लिख सकते हैं? 5 रेज टू पावर 2 इंटू 1। नाउ HCF, HCF क्या है? कॉमन फैक्टर ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर इनमें से कौन सा है? ओनली 1, सो HCF इज 1। LCM क्या है? ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। ईच प्राइम फैक्टर, स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर इज 2, 2 रेज टू पावर 3 हाईएस्ट पावर वाला है, तो इसको निकाल लेते हैं। 3 रेज टू पावर 2 वाला है, 5 रेज टू पावर 2 वाला है। इन सभी को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया? 1800 इज अवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन दैट HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 9, फाइंड LCM ऑफ दिस नंबर्स। हमने कल एक रिलेशन के बारे में पढ़ा था, LCM और HCF के। क्या था? कोई भी 2 नंबर दिए हों, उनका प्रोडक्ट उन दोनों के LCM और HCF की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। वही हम इसमें लगाएंगे। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। नंबर्स कौन कौन से हैं? 306 एंड 657। दोनों को मल्टीप्लाई किया। LCM हमने फाइंड करना है, एज इट इज उतार लिया। HCF की जगह पे हमने क्या लगा दिया? 9। अब LCM ये मल्टीप्लाई 9 है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड में। LCM किसके इक्वल आ गया? 306 मल्टीप्लाई 657 बाई 9। इसको 9 से काट के हमारे पास कितना आ जाएगा? 34। 34 को 657 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास कितना आ गया? 22,338। दैट इज अवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज check whether 6 raised to power n can end with the digit 0 for any natural number n.
वी नो दैट, हम जानते हैं कोई भी नंबर 0 से एंड तभी हो सकता है जब उसके दो फैक्टर्स 2 और 5 होंगे। कोई भी नंबर एंडिंग विद 0 तभी होगा जब उसके दो फैक्टर 2 और 5 ज़रूर होने चाहिए। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 40 की। 40 के प्राइम फैक्टर्स निकाले, हमारे पास कितना आ गया 20, 10, 2 को डिवाइड किया 5, 5 1 ज़ा 5। अब देखिए 40 के फैक्टर्स में 2 और 5 दोनों आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, किसी भी नंबर के कोई भी नंबर एंडिंग विद 0 तभी होगा जब उसके दोनों फैक्टर्स होंगे, कौन कौन से, 2 और 5 उनके फैक्टर्स में होने चाहिए। हम इसी से स्टार्ट करते हैं। हम मान लीजिए 6 रेज टू पावर n कैन बी एंड विद 0 ओनली इफ 2 and 5 बोथ आर इट्स फैक्टर्स, मतलब 2 और 5 दोनों इसके फैक्टर्स होने चाहिए। अब हम 6 के फैक्टर्स निकालते हैं। 6 के फैक्टर्स कौन कौन से आ गए, 2 और 3, बट इसमें कौन सा फैक्टर नहीं है, 5 फैक्टर तो है ही नहीं है। सो वी कैन से दैट 6 रेज टू पावर n कैन नॉट बी एंड विद डिजिट 0 बिकॉज 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 6. Now next question is, explain why both these numbers are composite numbers. What are the composite numbers? Composite numbers वो होते हैं जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर हों, मतलब अपने आप और 1 के अलावा उनके और भी फैक्टर्स हों, तो वो एक कंपोजिट नंबर्स होते हैं। वैसे मैंने नंबर्स के रिगार्डिंग एक वीडियो डाली हुई है, मैं इस वीडियो में लिंक भी डाल दूँगी, आप उसको भी चेक कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं क्या ये कंपोजिट नंबर्स हैं या नहीं है। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, इन दोनों में से कौन सा कॉमन आ रहा है, 13। 13 कॉमन लिया, 13 1 ज़ा 13, 13 1 ज़ा 13, इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास कितना आ गया, 77 प्लस 1 78 हो गया। 78 के फैक्टर्स बना लिए हमने, कितना आ गया 2 से डिवाइड किया 39, 39 को 3 से डिवाइड किया 13, 13 1 ज़ा 13, यानी ये हमारे पास इसके कितने ही फैक्टर्स आ गए, मतलब अपने आप से और 1 के अलावा इसके बहुत से फैक्टर्स आ गए, तो इसका मतलब ये तो कंपोजिट नंबर है। नेक्स्ट नंबर इज दिस, इनमें से कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन लिया तो ये आ गया प्लस 1। अब इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास कितना आ जाएगा, 7 6 का 42, 4 3 द 12, 12 2 द 24, 42 को 21 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1008। अब इसको प्लस किया 1 के साथ 1009। अब देखिए ये खुद के नंबर्स तो है ही हैं, मतलब जिनसे ये डिविजिबल है, इसके अलावा 5 और ये नंबर भी आ रहे हैं। सो दीज बोथ आर कंपोजिट नंबर्स। यस, दीज बोथ आर कंपोजिट नंबर बिकॉज दे हैव मोर देन 2 फैक्टर्स. Now next question is, there is a circular path around a sport field. Sonia takes 18 minutes to drive one around of the field, while Ravi takes 12 minutes. Sonia takes 18 minutes, Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet at the starting point? किसी के लिए भी मिनिमम टाइम निकालने के लिए कितने मिनट बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा से मिलेंगे, तो इसके लिए मिनिमम टाइम क्या होगा, एलसीएम ऑफ 12 और 18, एलसीएम ऑफ 12 एंड 18, दोनों के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 12 के फैक्टर्स कौन कौन से आगे, 12 को 2 से डिवाइड किया 6, 6 को 2 से डिवाइड किया 3, सिमिलरली 18 को 2 से डिवाइड किया 9, 9 को 3 से डिवाइड किया 3, 3 को 3 से डिवाइड किया 1। 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 रेज टू पावर 2, बिकॉज हेयर 2 कितने टाइम्स आया, 2 टाइम्स, सो 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3 रेज टू पावर 1 इंटू 1। 18 को कैसे लिख सकते हैं, 2 रेज टू पावर 1 इंटू 3 रेज टू पावर 2 इंटू 1। एलसीएम क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। सबसे पहले सबसे छोटा प्राइम फैक्टर कौन सा है, 2, इसमें से हाईएस्ट पावर वाला कौन सा है, 2 रेज टू पावर 2।
नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 3. 3 में से हाईएस्ट पावर वाला कौन सा हो गया? 3⁻². 4 into 9 is equal to 36. It means they will meet again at starting point after 30 minutes. इसके साथ ही हमारा जो ये फर्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा. एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन, बिकॉज अगर आप बेल आइकन ही दबाएंगे तो आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा भी मैंने वीडियो अपलोड कर दी और आप कभी भी देख सकते हो. थैंक यू सो मच.